students, welcome to PN Physics. Today we will talk about time-dependent Schrödinger wave equation in quantum mechanics, which is a very important equation in quantum mechanics, and it is analogous to Newton's second law of motion in classical mechanics, which is F is equal to ma. ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है क्वांटम मैकेनिक्स में जितना कि न्यूटन के लॉज रखते हैं इन केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. अगर हमें पोजीशन मालूम है क्लासिकल मैकेनिक्स में और मोमेंटम मालूम है, ठीक है, ऑफ एनी पार्टिकल, ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, जो कि मैटर है, फाइन. इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट ऑल द अदर पैरामीटर्स. वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोशन ऑफ द body with which it is moving, fine. But in case of quantum mechanics, we know that according to Heisenberg uncertainty principle, we cannot determine the position and momentum of a particle at the same time, fine. Now in order to derive this Schrödinger wave equation, we will स्टडी द डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, विच वॉज गिवन इन 1924 बाय डी ब्रॉगली. ही सेड एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव associated with it, fine. कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या एसोसिएटेड होती है, एक वेव एसोसिएटेड होती है. मींस एक पार्टिकल की पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी है एंड इट इज आल्सो हैविंग वेव लाइक प्रॉपर्टीज, फाइन. सो लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल of mass m, fine, and let us say it is moving with some velocity v. तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका कोई मास m होगा, it is moving with velocity v, so it also has a wave associated with it, fine. Okay, so then इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम p will be equal to mass into velocity, fine. एंड अगर इसके साथ एसोसिएटेड वेव है तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स. इनको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट्स, या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रक्स, फाइन. सो लैम्डा इज द वेवलेंथ, फाइन. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, दिस वेवलेंथ is given by the formula h upon p. Means ये जो wavelength है associated with the wave, it is related to the momentum of the particle, find by this relation, de Broglie relation, fine. Lambda is equal to h upon p, where h is the Planck's constant, where h is the Planck's constant, which is a constant term. Its value is 6.26 into 10 power minus 34 joules per second. ठीक है? Okay. If we know about the de Broglie hypothesis, we can find out the further derivation of this equation. ठीक है? For that, we'll consider, let xi be the wave function. ठीक है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ऑफ अ वेव. दिस वेव फंक्शन हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ वेव, फाइन. ये जो वेव होती है, वेव फंक्शन है,
it is a complex, it is a complex wave function. Fine. It has an imaginary term and ये हमें बताता है probability of a particle. फाइन कि वो कहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी की वो पार्टिकल कहाँ हो सकता है, ठीक है, जहाँ हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टिकल कहाँ हो सकता है. देन दिस वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, this wave function for a particle moving freely along positive x-axis is given by the formula a e power iota kx minus omega t. ठीक है. Where is the amplitude? This is the phase part of the wave. ठीक है, angular part of the wave. ठीक है. I is the iota imaginary. Fine. K is the propagation vector. X is the direction. This is the positive x-axis. Fine. Omega is the angular frequency and t is the time with which the particle is moving along the x-axis. Fine. And this wave function xi, it is a function of x and t, position and time. Fine. Now we will modify this wave function in terms of momentum and energy. ठीक है. We know the relation of energy with frequency nu. Fine. We know that energy is integral multiple of frequency. Fine. That is E is equal to h nu. And we also know जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा होती है वो न्यू के साथ कैसे रिलेटेड है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई, 2 पाई के साथ डिवाइड. We will get here is h by 2 pi is written as h cross and 2 pi nu is equal to this omega. Fine. So we get the relation E is equal to h cross omega. Fine. Also we can see is that we know this relation lambda is equal to h upon p. ठीक है. और ये जो वेव वेक्टर है इसको वेव प्रोपगेशन वेक्टर जो है k, प्रोपगेशन वेक्टर जो k है that is related to the wavelength of this wave. This k is equal to 2 pi by lambda. This we already know from the relation between k and lambda, and we also know lambda is equal to h upon p. So we will take that also, lambda is equal to h upon p. ठीक है. Now यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई और 2 पाई के साथ डिवाइड. उससे पहले हम p की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 पाई के साथ डिवाइड. फाइन. क्या था यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. तो यहाँ पे हम ले लेंगे p h बाय लैम्डा, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई, 2 पाई के साथ डिवाइड. ठीक है. दिस लैम्डा बाय 2 पाई, लैम्डा बाय 2 पाई by lambda is k and h by 2 pi is h cross. So h cross k. So we got this relation p is equal to h cross k. ठीक है. Now we will substitute this value of omega in terms of energy and the value of k in terms of momentum p. So we will substitute here a e power iota. k की वैल्यू क्या आ जाएगी, p by h cross. What is h cross? h cross की वैल्यू क्या है, h by 2 pi. ठीक है. x minus omega is e upon h cross t. Fine. Now we can take 1 upon h cross common, e power iota by h cross p x minus e t. Right? This e is exponential. This is xi as a function of x and t. Fine.
Now we know that total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. ठीक है, so we will take kinetic energy as half mv square and potential energy as v, which is a function of x. Fine, this total energy E. Fine. Okay, so we'll m से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो m स्क्वायर हो जाएगा and divide by m, तो we will get is m into v is momentum, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन 2m plus vx. Now in this next equation we will multiply this equation with xi. Multiply the above equation with xi. E xi is equal to E xi is equal to p square by 2m xi plus b, which is function of x into z. ठीक है, now we'll find out the value of E and P and we'll substitute here. For that we will first take derivative of this wave function xi with respect to time t. ठीक है, t के साथ डेरिवेट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, तो a e पावर आटा बाय h क्रॉस, ठीक है, px माइनस et, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा इसके, तो t के साथ डेरिवेटिव करोगे तो आटा e बाय h क्रॉस माइनस आटा e अपॉन h क्रॉस, ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू दिस इज इक्वल टू वेव फंक्शन xi, ठीक है, डेरिवेट किया, जो t का कोएफिशिएंट था वो पूरा आ जाएगा आटा अपॉन h क्रॉस माइनस e, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आटा e अपॉन h क्रॉस, और ये जो पूरी वैल्यू दैट इज xi, करली xi बाय करली t, ठीक है, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. वी कैन आल्सो डू इज ये जो वेव फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या ढूंढ लेंगे e की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे e xi किसके बराबर आ जाएगा, e xi विल बी इक्वल टू e into xi विल बी इक्वल टू h क्रॉस अपॉन आयटा करली xi बाय करली t, ठीक है, आयटा यहाँ है, आयटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आयटा स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद आयटा h क्रॉस करली xi बाय करली t, ठीक है, this is we have done partial derivative of xi with respect to time. Now we will do the partial derivative of xi with respect to x. Fine, इसके लिए हम लोग xi की वैल्यू लिख देंगे, xi की वैल्यू क्या थी, a e पावर आयटा px माइनस et आयटा बाय h क्रॉस. फाइन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं पहले इसका, करली xi बाय करली x, दिस कैन बी रिटन एज a, ठीक है, a e पावर आयटा बाय h क्रॉस px माइनस et. फाइन, और x के साथ कर रहे हैं तो साथ में कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, आयटा अपॉन h क्रॉस p, ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, दिस इज इक्वल टू xi, तो दिस विल बी रिटन एज करली xi बाय करली x आयटा अपॉन h क्रॉस p xi, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे p स्क्वायर xi चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे,
कर्ली स्क्वायर जाई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से करेंगे आयटा अपॉन एच क्रॉस पी इंटू आयटा अपॉन एच क्रॉस पी, ठीक है। अगेन ये टर्म आ जाएगी ए ई पावर आयटा बाय एच क्रॉस पी एक्स माइनस पी टी। तो ये क्या बन जाएगा, आयटा 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 स्क्वायर विच इज माइनस 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये पूरी टर्म क्या बन गई, साई, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, राइट। दिस पी स्क्वायर साई कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर साई एच क्रॉस स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। So this term we need, fine. We have this term. You can write it as A, and this is we can write it as B. From A and B, we will substitute here from A and B. E xi की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे आयटा एच क्रॉस कर्ली xi बाय कर्ली t। E xi की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयटा एच क्रॉस कर्ली xi बाय कर्ली t। पी स्क्वायर साई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2m भी है तो 2m की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस v x साई। सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वन डायमेंशन में हमने निकाला है टाइम डिपेंडेंट Schrodinger wave equation along the x-axis, fine। और ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है काइनेटिक एनर्जी को और ये रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, ये जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H है दैट इज गिवन बाय माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस vx, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस ऑपरेटर की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और हम यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर E की वैल्यू पुट कर देंगे अगर आयटा एच क्रॉस कर्ली बाय कर्ली t, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E xi इज इक्वल टू H xi। मीन्स अगर हम हैमिल्टोनियन को वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करेंगे वी विल गेट एनर्जी वैल्यूज, फाइन। ये इसकी आइगन वैल्यू है, ठीक है, ओके। सो दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच इज टाइम डिपेंडेंट कैन ऑल्सो बी रिटन इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। अगर हमें 3 डायमेंशन में लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, in 3 dimension it can be written as very simple, this first term will remain as it is iota h cross curly psi by curly t, ठीक है। ये जो चेंज आ रहा है वेव फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दिस विल बी अलोंग द all the 3 dimensions, that is curly square by curly x square plus curly square by curly y square plus curly square by curly z square। और ये ऑपरेट किस पे होगा, सारा का सारा वेव फंक्शन साई के ऊपर, चाहे तो आप बाहर लिख सकते हो चाहे इसको अंदर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, प्लस पोटेंशियल Vx साई। सो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फाइन। ये हमारे पास इक्वेशन आई है तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा, ठीक है, जहाँ से हमें वेव फंक्शन मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। वेव फंक्शन मालूम है तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेव फंक्शन हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, फाइन। उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे दिस वेव फंक्शन का, अगर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो दिस विल टेल अस द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम में, फाइन। अगर 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की पार्टिकल कहाँ पे है, ठीक है,
एंड वेव फंक्शन पता है तो हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, दैट इज एनर्जी ई, कि क्या एनर्जी प्रोसेस की है पार्टिकल ने, फाइन, एट एनी टाइम t. So this was all about Schrödinger wave equation. Hope you enjoyed. Thank you.